also know when you are not required. And it takes a really brave person to say that. Yes, you must know where you are required, but you must also know where you are not required. And that's actually the biggest problem in Yes, terms of figuring out. yes. And you know, as long as जैसे वो हम solve कर पाए problem, हाँ. that'll be amazing. So I think we are live now. तो Okay. सबसे पहले we're going to have and wish you a very very happy new year, an excellent 2021. हमारे बीच में मौजूद हैं आज एक बहुत बहुत खास मेहमान डॉक्टर निमिष देसाई. We are so honored to have you here, Dr. Desai. सर इंट्रोडक्शन में दूंगी पर मैं अब मास्क हटा सकती हूँ क्या? बिकॉज वी आर Yeah, नॉट. now that each one of us is in our room single, it is okay to take the mask off. Thanks. Thank you very much, sir. And again, it's such an honor to have you. And as a brief introduction to why this is so important, और ये शो ये बातचीत होगी मेंटल हेल्थ के बारे में. सर 2021 आ गया है, 1st of January आज दिन है. 2020 last year was a very bizarre year. It was almost like a 2020 match. Har दिन was like one googly. You That's didn't, very. yeah, you didn't know कि क्या आने वाला है. So one condition that stood out. तो हालांकि इंडिया इज अ लैंड फुल ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, बट एक जो कंडीशन स्टैंड आउट की थी वो है मेंटल हेल्थ पे, राइट? To all the viewers, in case and you know a formal introduction of why Dr. Nimish Desai, right, and who is Dr. Nimish Desai, अगर किसी को नहीं मालूम है, which is impossible, but just to let you know, Dr. Nimish Desai से ज्यादा experienced person in mental health I have not come across. सर के पास 40 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है. आई होप I'm correct in that, sir. Yes, ma'am. डायरेक्टर हैं ईबास के. ईबास stands for Institute of Human Behavior and Allied Sciences. आप सर निमहांस में काम कर चुके हैं, आप एम्स में काम कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर देयर इज अ लॉट मोर अंडर योर बेल्ट. I know you're very close to Mahatma Gandhi ji, and आप please कुछ उनके बारे में भी, you know, what attracted you to him, and is there a connection between Mahatma Gandhi ji जो कहते थे and the choices you made in your career? तो Dr. Desai, it's such an honor. I'm delighted. तो अगर मैं इधर उधर भटकूं, आप please pull me back on track. I'm a little sure. No, you are not likely to. Thank you. Thank you really for having me here. It's a pleasure and a privilege. If I might say, your analogy is great. 2020 year as 2020 match. हाँ सर, थोड़ा हम हिंदी में बात करेंगे. हाँ, वो आपकी जो समीक्षा है 2020 के साल के बारे में वो बहुत अच्छी है. 2020 मैच जैसा ये साल रहा है, लेकिन एक और पहलू है जी. 2020 का साल अगर कोई चीज प्रूव करता है तो एक चीज प्रूव करता है जो शेक्सपियर ने कहा था, The only thing permanent is change. तो 2020 के साल ने मुझे लगता है सारी मानव जाति को सिखा दिया कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है. कोई भी चीज वैसी नहीं रहेगी जैसी हमने पाई थी या जैसी थी जी. तो आज कल से अलग होगा और आने वाला कल आज से अलग होगा जी. तो मानव जाति को ठेठ भाषा में कहें, माफ करें, मानव जाति को इस महामारी ने हिला के रख दिया. तो मानव जाति का अस्तित्व हिल गया तो जाहिर है कि मानसिक समस्याएं फोरफ्रंट पे आ गई. जो अब तक पिछवाड़े में या छुपा के रखा जाता था बातें मानसिक स्वास्थ्य की, वो फोरफ्रंट पे आ गई. तो न सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है कि हम समाज को ये समझा सकें कि मानव जाति की मानसिक अवस्था कितनी मायने रखती है, लेकिन हमारी बायस भूल भी जाए एक तरफ करें, मानव जाति के भले में है कि मेंटल हेल्थ फोरफ्रंट पे आ गया. तो सर 2020 को एनालाइज करते हैं. एक्चुअली आपसे कितनी सारी बातचीत करनी है हमें. आज का जो हम शो कर रहे हैं, दैट्स टू अप्रिशिएट मेंटल हेल्थ एज अ कंडीशन. तो सर 2020 में एक बहुत भयंकर सा केस ओपन टू द पब्लिक, सुशांत सिंह राजपूत का केस ने मेंटल हेल्थ को काफी अपफ्रंट कर दिया.
I know all the psychiatrists जिनसे हम बात करते हैं वो कहते हैं कि लोग नहीं जाते psychiatrist के पास, but this is blown up in the open. So and उससे पहले of course Deepika Padukone जी थी, I mean you know she stated her case of depression. So is that a good thing? Surely अब तो आपको लग रहा होगा कि you know people are coming out and talking about mental health. मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा और पहले से ज्यादा खुल के बातचीत हो रही है, इससे अच्छा डेवलपमेंट हो नहीं सकता जी, ये तो निसंदेह है। थोड़ी सी नजाकत ये है कि न सिर्फ हम मनोचिकित्सकों को, मनोवैज्ञानिकों को पीड़ा रही, दुख रहा, मैं इस हद तक जाऊंगा हमें बड़ा गहरा दर्द रहा, न सिर्फ हम लोगों को, लेकिन जो समझदार नागरिक हैं, हमें जानकारी है, उनको भी बड़ा दुख रहा। जैसे मास मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को सुसाइड ऑब्लिक मर्डर को जैसे ट्रीट किया गया। Sir, I think we've lost the connection. I may have to re-log in. Okay. See that? No, we're fine. Okay. हाँ जी. I can't hear you. Yeah, sorry. मैं कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई वो अपने आप में एक दुखद घटना थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर वर्किंग, कानून अपना काम करे, हम सब कानून परस्त नागरिक इसमें विश्वास रखेंगे। लेकिन उसके आड़ में, और मैं ये पूरी जिम्मेवारी से, संजीदगी से कह रहा हूं कि कानून परस्त समाज की आड़ में सोशल मीडिया में नागरिकों ने और मास मीडिया के मैनेजर्स ने धज्जियां उड़ा दी सुशांत सिंह राजपूत की प्राइवेसी की। सुशांत सिंह राजपूत एक व्यक्ति जो गुजर चुका, वो अब है नहीं, हमारे साथ था नहीं पिछले कुछ महीनों से, वो अपने बारे में डिफेंड कुछ भी नहीं कर सकता, क्लैरिफाई नहीं कर सकता, और उसके बारे में सारी बातें, व्हाट्सएप मैसेजेस, बाकी नजाकतें। सो आई रियली फील that unfortunately we compromise the privacy and confidentiality rights of Sushant Singh Rajput and the friends and the family royally. In fact, कुछ हद तक हम साइकियाट्रिस्ट ये मानते हैं कि इसके बारे में कुछ ऑफिशियल एक्शन होना चाहिए था। और मैं आप सबसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, जो हमारी नेशनल बॉडी है of all the psychiatrists and mental health professionals, very early on, soon after that event, wrote to the Press Council of India a detailed letter placing our reservations and requesting the Press Council of India to put restraints on the print and the audiovisual media about confidentiality rights. Unfortunately, not much happened on the few TV channels, a few of, but सर आपकी आवाज बीच में कट रही है। But that's okay. Keep talking, sir. Sorry. हाँ, आप ठीक है। Okay. I know आपका कनेक्शन थोड़ा सा वहाँ पे ठीक है। मैं भी जाता हूँ। लेकिन एक बार फिर कहूंगा संजीव जी से, गंभीरता से, सुशांत सिंह राजपूत और उनके दोस्तों की और परिवार के सदस्यों की जो प्राइवेसी राइट्स है, गोपनीयता का हक जो था, उसकी धज्जियां उड़ गई। वो तो एक पहलू हुआ। दूसरा दुखद पहलू ये रहा कि समाज में इनडायरेक्टली ये मैसेज गया कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए, गुजर जाए, तो उसके बाद आप उसके बारे में जो चाहे बात कर सकते हो। It is a very sad development. Any person, any one of us, once he or she is not around, to keep talking about private matters of that person in public platform is itself intrusion. Much more as we know that person was undergoing treatment for mental illness. तो मानसिक रोगियों की गोपनीयता की जो इंट्रूजन हुआ, ये बड़ा दुखद था। हमें उम्मीद ये है, आपके जरिए मैं सारे श्रोताओं से हम रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आने वाले समय में, 2021 में और आने वाले सालों में, हम हर नागरिक की, हर व्यक्ति की गोपनीयता की इज्जत करें। खासकर मानसिक रोगी या कोई भी विकलांग व्यक्ति है, उसकी गोपनीयता की इज्जत हो। नीड टू नो, समाज का हक है कि क्या हुआ। नीड टू नो का बैलेंस करना पड़ेगा उस व्यक्ति की गोपनीयता के साथ साथ। सर इधर एक सवाल उठता है, विच इज के
which bit of his privacy do you think, मतलब the fact कि वो गए थे psychiatrist के पास, is that one that itself. सेकंड, कौन सी बीमारी थी, कौन सी दवाई दी गई, वो दवाई लेते थे या नहीं लेते थे, उनकी डिप्रेशन क्यों हुई, क्या गर्लफ्रेंड ने कुछ किया, क्या बहन ने कुछ किया, क्या प्रोड्यूसर्स ने कुछ किया। तो बड़ा बड़ा नाजुक सा बैलेंस है। मैं एक बार फिर कहूंगा, कोई भी एक बात मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि पॉलिटिशियन, पब्लिक पर्सन और फिल्म स्टार की प्राइवेसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, ये डेमोक्रेसी में, ओपन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले एक पब्लिक फिगर की प्राइवेसी, थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होगी, लेकिन उसकी एक सीमा होनी पड़ेगी कि हम कब। अच्छा, एक और पहलू है आशा जी, जो साइकियाट्रिस्ट ट्रीट कर रहे थे 2-3 हमारे साथी बंबई के, उनके काबिलियत के बारे में, उनकी प्रैक्टिस की एथिक्स के बारे में, उनकी गैर मौजूदगी में टीवी पे चर्चाएं हो रही है। तो ये जो एक बुनियादी उसूल है कानून का और समाज का, कि अगर मेरे बारे में बात हो रही है तो मुझे मौका मिलना चाहिए सफाई दे देगा। वो मौका हमारे उन साथियों को मिला नहीं। हमारे दोस्त हैं, हम कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी है कि वो जो साइकियाट्रिस्ट जिस मानसिक परेशानी से गुजरे, तो व्यक्ति विशेष की गोपनीयता, परिवार की और दोस्तों की गोपनीयता, और जो ट्रीटिंग प्रोफेशनल्स है उनकी गोपनीयता। तो उम्मीद ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो मीडिया पे अपहीवल आया, उससे हम सामाजिक रूप से या कानूनी रूप से एक सबक कम से कम सीखें। एक तरफ जरूरी है कि मेंटल हेल्थ की बात हम खुल के करें, लेकिन दूसरी तरफ संजीदगी से और जिम्मेवारी से करें। व्यक्ति विशेष की गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी को ब्रेक ना करें। राइट सर, एक जमाने में, एंड क्योंकि आपके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई हमें इंडिया में नहीं मिलेगा, सो आई हैव अ वेरी जेन्युइनली अर्नेस्ट क्वेश्चन। आई रिमेम्बर जब हम और आपने कोई ट्रांजिशन तो देखा होगा जरूर मेंटल हेल्थ को लेके। मुझे याद है बचपन में हमें कहा जाता था कि बिहेवियर सेल ने तो तुम्हें पागल खाने भेज दिए, आगरा, बरेली, राइट, अमृतसर, रांची। हाँ, अमृतसर, रांची। तो ये ऐसा क्यों, मतलब व्हाई इज मेंटल हेल्थ एंड यू नो इज दैट चेंज्ड नाउ? एक बात हम जरूर गौर करें और जनता तक भी पहुंचाएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। साइकोलॉजी थोड़ा पुराना विषय है, लेकिन साइकियाट्री, मनोचिकित्सा का, मानसिक रोगियों के इलाज का, निदान और इलाज का जो विषय है, साइंटिफिक सब्जेक्ट, वो शायद 100 साल पुराना है। राइट। सो सिंस द साइंस इज न्यू, ऑब्वियसली 150, 200, 250 साल पहले सामाजिक रूप से पूरे विश्व भर में गलत फहमियां और भ्रांतियां फैली हुई थी जी। तो समाज जैसा सोचता था, जिसको समाज कहता था, एक बहुत अनिच्छनीय शब्द है, लेकिन हम हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए बात करें, पागलपन। पागलपन का जो शब्द प्रयोग है, उसके पीछे जो सोच थी, वो 18th या 17th सेंचुरी के लिए गलत नहीं थी। उस वक्त समाज ये सोचता था कि जो मानसिक रोगी है, उनकी सोच में जो पागल कहते थे, उनसे समाज को बचाना है। उन व्यक्तियों के हकों की, उनकी देखभाल की, उनके इलाज की सोच नहीं थी। सोच सिर्फ ये थी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा अस्थिर है, उन पागलों को पागल खाने में डाल दिया जाए। बार बार कहूंगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, पागल, पागलपन, पागल खाना, ये शब्द हर तरीके से गलत है इस्तेमाल करना। हम ऐतिहासिक रूप से हमारे दर्शकों को सिर्फ बताना चाहें कि ये संदर्भ था 200-250 साल पहले। तो होता ये था कि हर बड़े शहर में या हर प्रांत में एक मेंटल हॉस्पिटल बना दिया जाता था, संस्कृति से दूर, जहां समाज है उससे बहुत दूर, और सारे मानसिक रोगियों को वहां डाल दिया। एंट्री होती थी, एग्जिट नहीं होती थी। There was in gate, there was no out gate, unfortunately. जो एक बार गया वो आजीवन वहीं रहेगा, 99% चांस वहीं मरेगा, शायद उसको अंतिम संस्कार का भी डिग्निटी नहीं मिलेगा परिवार की तरफ से। समाज डरता था गंभीर रूप से जो मानसिक रोगी होते थे उनसे। राइट। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे। अच्छा, जो और आम मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन, तनाव, ओसीडी, इनकी पहचान बीमारी के रूप में नहीं थी, इनको सिर्फ विकृति समझा जाता था।
तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है, न्यूरोसिस जिसको कहते थे, उनको पहचाना नहीं गया। समाज ने, परिवार ने जैसे ठीक समझा उसकी मदद की, और जो गंभीर रूप से मानसिक बीमार थे, जिनको अपनी शुद्ध नहीं होती थी, उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता था। विश्व भर में और हमारे देश में 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में रिफॉर्म शुरू हुआ, जब धीरे धीरे इलाज संभव हुआ। वैज्ञानिक रूप से जब इलाज पॉसिबल हुआ, when treatment became possible, then it was realized that the society need not be scared of them. One. Two, those people can also come out of the mental hospital and live in the society like any one of us. Three, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे मानव अधिकारों की और बात फैली, बड़ी पीड़ा का विषय है कि नाजी जर्मनी में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट ने भी मदद की हिटलर के ग्रुप की एक्सपेरिमेंट्स करने में मानसिक रोगियों पर। तो वो जो वहां से मानव अधिकारों का जो एक ढांचा उभर के आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब पहचाना जाने लगा कि मानसिक रोगियों के भी अधिकार हैं, उनको आप एक इंसान की तरह, व्यक्ति की तरह डील करेंगे। तो वो जो रिफॉर्म है आशा जी, वो पिछले 60-70 साल से हमारे देश में शुरू हो गया है। ये भी स्वीकार करने की बात है कि जो मेंटल हेल्थ रिफॉर्म है हॉस्पिटल्स का या समाज में, वो काफी धीमी गति का है। समाज को चाहिए था, हम सबको चाहिए था, शायद हमारी भी फेलियर है प्रोफेशन की कुछ हद तक, आंशिक रूप तक, कि हम उस रिफॉर्म को स्पीड अप नहीं कर पाए हैं। जैसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं, वो उसी प्रकार मेंटल हेल्थ रिफॉर्म जरूरी था, हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। वहां एक बार फिर उस मुद्दे पे आए जहां से हमने बात शुरू की। 2020 का वर्ष मानव जाति के लिए बहुत दुखद रहा। हम सब ने बहुत सारी चिंताओं में समय गुजारा। हम में से कुछ व्यक्ति हमारे दोस्तों को, हमारी परिवार के सदस्यों को खो चुके। वो लॉसों कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो मानव जाति को और हमारे जैसे समाज को, भारतीय समाज को एक फायदा हो सकता है कि ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा खुलापन आया है, फोर फ्रंट पे मेंटल हेल्थ की बात आई है, वो अब कहीं फिर पीछे ना चला जाए। जो दरवाजे बंद थे, जो किवाड़ बंद थे, मानसिक स्वास्थ्य की, मानसिक रोगियों की बातें सिर्फ गोपनीयता में पर्दों के पीछे होती थी, वो पर्दे से बाहर निकल आया है। अब इसको हम यहाँ रहने दें और जो मेंटल हेल्थ रिफॉर्म है उसको और त्वरित गति से आगे कर सके। सो सर, इससे तो ट्रांजिशन तो मैं भी देख रही हूँ इन माय वास्ट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। I'm seeing a transition. In fact, हम फैमिली पे बहुत सारे हमारी एक कम्युनिटी है, यू नो, टेलीविजन देखकर, टाटा स्काई फैमिली हेल्थ शोज देखकर बहुत सारे लोग ना मेंटल हेल्थ के सवाल लेके आते हैं और अपनी कंडीशन शेयर कर रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंक्शियस, आई हैव बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो आजकल कितनी नई नई भी चीजें सुनने को मिलती हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, राइट? I think that's the reason, and 2020 मेरे को तो लगता है सर is a breaking point, right? या तो अब कोरोना वायरस महामारी, ये पैंडेमिक की वजह से कितने सारे लोग reached out to us and said we're depressed. तो आपका क्या इस पे व्यू है? Do you think 2020 has that potential? 2020 had the potential and still carries the potential of helping all of us recognize the value of mental health. लेकिन अगेन एक बहुत नाजुक बैलेंस है। कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे किए गए थे और अभी भी किए जा रहे हैं कि जो विषाणु की महामारी है कोरोना की, उसके बाद मानसिक रोगों की महामारी आ जाएगी। साइकियाट्रिक एपिडेमिक विल फॉलो दी कोरोना वायरस एपिडेमिक, राइट? दैट परहैप्स इज ओनली मार्जिनली, मिनिमली ट्रू। फर्क करना मैं चाहूंगा साइकियाट्री और साइकोलॉजी में। आप सहमत होंगे, हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये फर्क भी बात करना जरूरी है। साइकोलॉजिकल इश्यूज है जो आपके, हमें, किसी को भी रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कभी दुख हुआ, कभी चिंता हुई, कभी टेंशन हुई, कभी निराशा हुई, कभी गुस्सा आया, कभी परिवार में बातचीत 2 दिन तक नहीं हो रही है और कभी हॉलीडे पे जाके सब साथ मिलके कर रहे हैं। तो वेरिएशन जो है वो साइकोलॉजी का इश्यू है। जब एबनॉर्मल बहुत हो जाता है बर्ताव, जो बीमारी समझा गया है डॉक्टरी विज्ञान के रूप में, साइकियाट्री का वो विषय है। तो 2020 में आशा जी ये जरूर हुआ, ऑल ऑफ अस वेर साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड।
हमारे जो 7.8 बिलियन लोग अभी इस विश्व में हैं, अगर उसमें से कोई भी ये कहे कि 2020 में पूरे साल में मुझे कभी कोई मानसिक परेशानी नहीं हुई, तो मैं दावे से कहता हूं वो झूठ बोल रहा है। हो ही नहीं सकता कि जो इंसान 2020 में जिया उसे कभी ना कभी कोई मानसिक परेशानी ना हुई हो, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, या अपने काम के कारण। तो psychological distress became a universal experience. Some people went into depression, anxiety, जो कुछ disorders हैं। तीसरा पहलू जो है, जो गंभीर मानसिक रोगी थे, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे, जिनका इलाज चल रहा था, उनके इलाज में ब्रेक आ गया। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया, अनलॉक लॉकडाउन के बाद, उसके बाद भी व्यक्ति विशेष और परिवार को ये नहीं पता था कि अस्पताल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हम जाएं या ना जाएं, डर था कि अस्पताल कैसे जाएं। तो जैसे बाकी लंबे अरसे की बीमारियों के साथ हुआ, जिनका इलाज चल रहा था उसमें ब्रेक आ गया, और स्ट्रेस तो था ही, तो उनमें रिलैप्स और रिकरेंस हो गया। तो मुझे ये लगता है कि ब्रेक थोड़ा हुआ, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी और निजी क्षेत्र ने अब मेंटल हेल्थ सर्विसेज संभाल ली है। तो हम दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले कि अगर आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके अड़ोस पड़ोस में, काम के साथियों में अगर किसी का इलाज चल रहा था, तो हम सबका पहला फर्ज यह है कि उस इलाज को जारी रखें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका इलाज पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब लग रहा है कि इलाज जरूरी है, तो बेझिझक, बिना कोई हेजिटेशन के कंसल्टेशन के लिए जाएं। तीसरे लेवल पे, अगर हम में से कोई सिग्निफिकेंटली साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड है, तो दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से बात करें, तय करें कि क्या मुझे कंसल्टेशन की जरूरत है या नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा, आशा जी आप सहमत होंगे, ये है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कहें, इट्स ओके टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स ओके टू रीच आउट फॉर हेल्प। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एहसास करना और उसके बारे में बात करना बिल्कुल सही है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो वो मैसेज जाए। और चौथे लेवल पे मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा, आम जीवन के हर एक अनुभव को, खासकर ऐसी विपदा में जैसी 2020 में विपदा रही है, इतनी बड़ी आपदा रही है, हमारे आम जीवन के हर एक एक्सपीरियंस को हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर समझने की गलती ना करें। अब तो ऑलरेडी 10 महीने तो हो ही गए, मार्च से शुरू करके। हम सब जानते हैं, अगर गौर करें, कि हम में से बहुत सारे व्यक्तियों को, करीब सबको, थोड़े समय के लिए परेशानी हुई, लेकिन अपने आप को हमने संभाल लिया जी, राइट, बिना किसी मदद के खुद से संभाल लिया है, परिवार के। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैसेज है। पॉजिटिव मैसेज ये है कि मानव जाति की एडेप्टेशन और रेजिलियंस एडजस्ट करने की बहुत अच्छी थी, है, और वो एक बार फिर साबित हो गई। लेकिन हमारे जैसे 10, 100, 1000 में से जो थोड़े व्यक्तियों को इलाज की जरूरत है, मदद की जरूरत है, उनको हम इलाज पहुंचाएं। सर, काफी 2-3 बातें बनती हैं जो जो स्टेटमेंट आपने दी। सबसे पहले तो अगर आप बहुत ब्रीफली लोगों को समझा दें, एक ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन इज साइकियाट्रिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है? तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन। साइकियाट्रिस्ट जो है वो एमबीबीएस किए हुए मेडिकल डॉक्टर हैं, जो फिर 3 साल की एमडी साइकियाट्री की पढ़ाई करके क्वालिफाई होंगे, जैसे मेरे करियर में हुआ। तो मेडिकल डॉक्टर फिर साइकोलॉजी और मानसिक स्वास्थ्य की चीजें सीख के मानसिक रोगियों का निदान और इलाज करना सीखेगा, वो मेडिकल साइकियाट्रिस्ट हुआ। तो आप दवाई लिख सकते हैं? हाँ जी, दवाई लिखें, काउंसलिंग करें, मदद करें। जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कोलीग हैं, वो एमए, बीए, एमए साइकोलॉजी के साथ करके, पीएचडी करके, थोड़ा एक्सपोजर उनका मरीजों के बारे में जरूर हो जाता है, और हम लोग साथ मिलके काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में। तो हमारे जो साइकोलॉजी कोलीग्स हैं वो निदान करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। और तीसरा पहलू है आशा जी, सोशल वर्कर, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। तो जो समाज सेवी है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, वो मानसिक रोगियों की और उनके परिवार की तकलीफ समझ के सोशल एंगल से एनालाइज करके मदद करेगा। तो क्लासिकली कहा गया है बायोसाइको सोशल मॉडल। आज उसको 100 साल से थोड़ा ऊपर हो गया, 20वीं सदी के शुरुआत में ये मॉडल सामने रखा गया, जो अभी तक मोटे तौर पे माना जाता है। अगर मुझे डिप्रेशन की तकलीफ है तो उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं,
जेनेटिक भी और मेरे ब्रेन में। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, मेरी खुद की मानसिकता कैसी है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं और मैं क्या फील करता हूं, आप कैसे रिएक्ट करते हो मेरे डिप्रेशन के बारे में। और सोशल एस्पेक्ट्स हैं, फैमिली के और समाज के और कोवर्कर्स के। तो बायो साइको सोशल मॉडल तीनों मायने रखते हैं अंग। ये एक हकीकत है कि बहुत सारी मानसिक बीमारियां अब ब्रेन मैकेनिज्म्स में स्थापित हैं, जो 40-50 साल पहले एस्टैब्लिश नहीं था। नॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की ब्रेन स्टडीज इनफ हो गई हैं कि हमें पता चले कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है डोपामिन रसायन फला एरिया में ज्यादा हो जाने से, डिप्रेशन होता है फला ब्रेन के एरिया में सीरोटोनिन कम होने से, एंजाइटी होती है कोई और रसायन के एरिया में ज्यादा हो रहा है। तो जो ब्रेन बेस्ड मैकेनिज्म्स हैं मानसिक रोगों के, वो अब एस्टैब्लिश्ड है। और इसलिए और विश्वास हमें बनना चाहिए और एतबार बनना चाहिए हमारे सब दर्शकों को, समाज में सबको, कि सरलता से, सेफ्टी से मानसिक रोगों का इलाज संभव है। एंड इन फैक्ट ये मानसिक रोग इज अ रोग टू बिगिन विद, ये एक डिजीज है। ये यू नो बिकॉज हम कितनी इनसेंसिटिवली इंडिया में बोल देते हैं रिटार्डेड है, आई नो, पागल है, एंड दैट्स सच अ पिटी बिकॉज इट्स कोई डायबिटिक है तो नहीं बोलता। डायबिटीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक और यहां फर्क कर लें आशा जी, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन। जी, अब वैज्ञानिक रूप से और इंटरनेशनल पॉलिसी में मेंटल रिटार्डेशन शब्दों को भी रिप्लेस कर दिया गया है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। जी, जैसे आपने कहा रिटार्डेड एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया था, जैसे पागल शब्द था। तो समाज और मानव समाज अपने आप को बदलता रहता है। तो पागल शब्द इस्तेमाल करना बंद किया, मेंटली रिटार्डेड बंद किया, अब उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। लेकिन ये भी दुख की बात है कि बहुत सारे सुशिक्षित और अदरवाइज नॉलेजेबल पर्सन सोसाइटी में मानसिक रोग और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं। जी, और संक्षेप में कोशिश करें, मानसिक रोग तब कहा जाएगा अगर मेरी डेवलपमेंट 15, 20, 25, 35 तक नॉर्मल हुई, इंटेलिजेंस में भी और इमोशन में भी और सोच में, फिर जाके मुझे कोई बीमारी शुरू हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन। तो मेरे बर्ताव में, मेरे भावनाओं में फर्क आ जाता है, मेरे बोलचाल में फर्क आ जाता है आफ्टर अ नॉर्मल डेवलपमेंट। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। जो इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड है, जिसको मेंटली रिटार्डेड कहते थे, वो जन्म से, गर्भ से या जन्म के वक्त से उसकी इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है 25%, 50%। तो अगर मेरी इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, गर्भ के दौरान कुछ विकृति हुई या जन्म के दौरान कुछ तकलीफ हुई, तो उस कारण मेरी इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, मेंटल रिटार्डेशन का इलाज अभी नहीं संभव है। मेंटल इलनेस में रिहेबिलिटेशन जरूर हो सकता है, पुनर्वास जी। भाई अगर मेरी कैपेसिटी 50% है तो उसको पूरी तरह उजागर करने में रिहेबिलिटेशन मदद करेगा। ओके। तो मेंटल रिटार्डेशन का इलाज नहीं संभव है, करीब करीब सभी मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है। सर इतनी बातें आपसे, आप जो बोल रहे हैं इस पे 5 और सवाल उठ के आते हैं। सो आई हैव टू गो बैक एंड फिनिश ये कोरोना वाली कॉन्वर्सेशन। हमारा फैमिली पे ये ख्याल है कि 2021 इज अ ईयर फॉर मेंटल हेल्थ। पता नहीं वर्ल्ड क्या बोलेगी बट हम बोलेंगे। ओके, मेंटल हेल्थ इज अ बिग प्रॉब्लम। लोग हमसे कह रहे हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं। जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा अच्छा साउंड करा कि 2021 में पीपल विल बी यूज्ड टू कोरोना वायरस एंड हम सेट रहेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, राइट? विल बी एबल टू डील विद दिस। However, there is some international data और हमारी एक बातचीत चल रही थी कुछ टाइम, एक दो महीने पहले, जो न्यूरो कोविड करके, राइट, एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि आजकल के जो सेक्वेले, आपकी भाषा में जैसे बोलते हैं, राइट, एंड आई एम नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। आजकल क्या हो रहा है, इंटरनेशनली देखा गया है कि आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अफेक्ट हो रहा है कोविड के कारण। अब तो एक लंदन स्ट्रेन भी, आई मीन यूके से एक स्ट्रेन भी आ गया, तो देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। ओके, तो इंडिया में इसका क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन? मोटे तौर पे ये है
एक एक आपकी आपकी रजामंदी से एक और बेसिक कॉन्सेप्ट वेरीफाई कर लूं, फिर आपके मुद्दे पर आते हैं जी। ब्रेन जो है वो ऑर्गन है, किडनी लिवर हार्ट की तरह एक अंग है ब्रेन, जो हमारे स्कल में बैठा हुआ है। जी। हमारा सारा सीपीयू इज द ब्रेन। मैं जी। आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, आपके हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन हो रहे हैं, आपकी मूवमेंट है, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। जी। दैट इज द ऑर्गन। माइंड इज नॉट एन ऑर्गन, माइंड इज अ फंक्शनल यूनिट। द सीट ऑफ द माइंड इज इन द ब्रेन। वो कवि जो कहते हैं कि दिल, वो दिल एक्चुअली मन नहीं है, वो कविता की बात है। तो ये आप कह रहे हो दिमाग और मन। दिमाग और मन, बिल्कुल। तो मानसिक तकलीफें शुरू होती है, जैसे मैं पहले कह रहा था, दिमागी रासायनिक बदलाव से। ओके, लेकिन जो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं, लकवा मार जाना, पक्षाघात होना, मिर्गी की बीमारी, वो न्यूरोलॉजी की ब्रेन की डिजीजेस हैं। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नहीं, लकवा इज स्ट्रोक, स्ट्रोक एंड एपिलेप्सी, stroke, epilepsy, dementia, Parkinson's disease, you know, tumors of the brain, जी। right? All of those. Infection हो जाए brain का, meningitis, right, yeah. okay. So अब जो आप पूछ रहे थे उस पे आए, जाहिर है जो कोरोना वायरस का खुद ब्रेन पे भी असर होता है, जैसे लिवर या हार्ट पे होता है। सो तो आप पूछ रही थी न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट कोरोना वायरस के स्टडी किए जा रहे हैं, हम अभी सब सीख रहे हैं। See, we are all learning. सारी मानव जाति और मानव जाति का विज्ञान अभी सीख रहा है क्या होगा। जो कोविड पॉजिटिव असरग्रस्त हुए और जो बच गए, फॉर्चुनेटली एक बात और कह दे, फॉर्चुनेटली विश्व भर में और इंडिया में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो 85-90%, 95% लोग बच जाते हैं, उनका जीवन बच जाता है। लेकिन जीवन बचने के बाद पुराना जैसा स्वास्थ्य शायद ना बने। किडनी पे, हार्ट पे, लंग्स पे, ब्रेन पे कुछ असर बच सकता है, या 6 महीने 1 साल बाद होगा। तो वो हमें पता चलेगा 2021 में। जैसे आप सही कह रही थी, आपसे बात जो हुई होगी हमारे दूसरे एक्सपर्ट की, कि न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स ब्रेन पे पहचाने जाने लगे हैं, और उसका भी इफेक्ट होगा बिहेवियर में। वो तो एक हिस्सा हुआ। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं शुरू से आज के वार्तालाप में, कि जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग बढ़ सकते हैं या तनाव के कारण या आर्थिक कारणों से। मेरी नौकरी चली गई, मेरी तनख्वाह कम हो गई, मुझे घर का निर्वाह करने में मुश्किल हो रही है, तो वो जो आर्थिक और सामाजिक कारण है, उसके कारण जो असर होगा वो भी माइंड पे असर हो सकता है, वहां डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ हो जाए। तो बल्कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है इबास, बिकॉज उसका नाम ये बड़ा यूफेमिस्टिक सा है, ह्यूमन बिहेवियर, मानव वर्ताव में जो बदलाव आया उसको वैज्ञानिक रूप से पहचाना जाए, तो हमने उसको बॉटम लाइन बनाया हुआ है, ब्रेन माइंड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। सो व्हाट वी नीड टू डू इन 21st सेंचुरी, एंड जैसे आप कह रही हैं डेफिनेटली 2021 से एक ठोस शुरुआत करके, वी हैव टू रिकॉग्नाइज ब्रेन माइंड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। द रिपीटेटिव मैसेज इज दैट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। स्ट्रोक, एपिलेप्सी, डिमेंशिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी बीमारियां ब्रेन या माइंड की है, करीब करीब सबका इलाज संभव है। ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है। आपकी रजामंदी से, आपकी सहमति से मैं ये हमारी 1 घंटे के वार्तालाप में कम से कम 10 बार कहना चाहूंगा, कि हमारे दर्शकों को ये रजिस्टर हो जाए कि इन बीमारियों का, इन तकलीफों का इलाज संभव है। चलिए सर, तो अब बात करते हैं। तो the good thing is, so you know, we are committed 2021 में, That's wonderful. and beyond, Yes. right, take mental health conversation to a different level, क्योंकि कितने सारे लोग जाते नहीं। इनफैक्ट one of the questions that keeps coming to us is, families कहते हैं कि हमको लगता है कि इनको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, कोई तो फैमिली मेंबर को, पर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे ले जाएं उनको डॉक्टर के पास, क्योंकि वो नाना नाना कहते रहते हैं, राइट? दैट इज अ बिग इशू राइट नाउ। दूसरा, फैमिलीज नहीं ले जाना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि आप तो मेंटल हो गया, मेंटल है ना, मेंटल हो गया, which is not a good thing, which is stigma. So what do you think we can do? एक तो ये है conversation, and before I lose track, the second thing I want to talk about is on depression, जो
आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था. तो let's just talk about the stigma issue. Sure. Right? And then we'll come to the cases of India. मतलब what's Sure. going on? Sure. जो आप मुद्दा उठा रही हैं जी. वो टेक्निकल भाषा में पब्लिक हेल्थ में जन स्वास्थ्य के हिसाब से इसको कहा जाता है ट्रीटमेंट गैप. डायबिटीज, थायराइड, डिप्रेशन, कोई भी लंबे अरसे की जो बीमारियां हैं, एपिलेप्सी, समाज में कितने मरीज हैं, एस्टिमेशन साइंटिफिक, और उसमें से कितने मरीजों को इलाज पहुंचाया जा रहा है. जिनको इलाज नहीं पहुंच रहा है या जो इलाज तक नहीं पहुंच रहे हैं वो ट्रीटमेंट गैप कहा जाएगा. अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट गैप मानसिक बीमारियों का बहुत ज्यादा है विश्व भर में. सबसे विकसित और प्रगतिशील समाजों में भी मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट गैप कम से कम 40-50% है. तो सिर्फ आधे लोग कंटिन्यूअस स्टेबल ट्रीटमेंट ले पाते हैं. उन्हीं कारणों से जो हमने बात की. भारतवर्ष में और दक्षिण एशिया में बदनसीबी से बहुत दुख की बात है ट्रीटमेंट गैप करीब 80% है. बट इज इट इन अर्बन इंडिया की अर्बन और रूरल दोनों में. एक छोटी सी मिसाल दें हम आंकड़ों से, हमारे दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे आप और हम दोनों, लेकिन जो एक बुनियादी आंकड़ा है, मानव समाज में मानसिक रोग कितनी तादाद में है, विश्व भर का आंकड़ा है 25%. 25%. 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जिसको इलाज से मदद हो सकती है. ये इसलिए कि अमेरिका यूरोप में तादाद ज्यादा है, 40-50 से भी प्रतिशत. फॉर्चुनेटली भारतवर्ष में और दक्षिण एशिया में यह आंकड़ा सिर्फ 10% है. बट डिटेक्टेड केसेस? नो, डिटेक्टेबल केसेस. ओके. और ये कैसे अराइव करते हैं? स्टडीज करके समाज में गए, हमने 10,000 50,000 लोगों की स्टडी की कि रेट कितना है. ओके. तो रेट है 10%. भारतवर्ष में 135 करोड़ जो हम लोग हैं उसमें से 10% व्यक्तियों को मानसिक बीमारी है, उनका इलाज होना चाहिए. एक मुद्दा डिटेक्टेबल. जी. बट द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिटेक्टेड केसेस आर ओनली 2%. 10 में से 8 व्यक्ति मानसिक रोगों के साथ निभा कर लेते हैं, इलाज तक नहीं पहुंचते हैं. ये हर तरफ से समस्या है. व्यक्ति झिझक कर रहा है, कई बार परिवार नहीं मानता है या परिवार लाचार है, और सरकार और अस्पतालों की, डॉक्टरों की तरफ से भी कमी रही है कि हम अभी इलाज सब तक नहीं पहुंचा पाए. तो ये हमारी सबकी एक सामूहिक कलेक्टिव नॉन सक्सेस जरूर कहूंगा मैं, फेलियर ना भी कहें. This is lack of success on everybody's part. That the treatment gap is 80%. 100 में से 100 भारतीयों में से अगर 10 लोगों का इलाज होना चाहिए, 2 का इलाज हो रहा है, बाकी 8 का इलाज नहीं हो रहा. तो इसमें एक और इशू सर हो सकती है, which is there so few psychiatrists in India. साइकोलॉजिस्ट तो पता नहीं, सब लोग ही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं. कल मैं भी उठ के बोल सकती हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट, राइट? बट देयर सो फ्यू साइकियाट्रिस्ट्स इन इंडिया. तो इज इट कि गवर्नमेंट ने इस पे जोर मारती कि लोगों को पसंद नहीं है ये फील्ड? लोगों को पसंद नहीं था, लोगों के एटीट्यूड्स नेगेटिव थे, जैसे हमने आज शुरू में बात किया. जी. लोगों के, समाज के एटीट्यूड्स नेगेटिव थे, इसलिए न समाज ने न सरकार ने कोई खास ध्यान दिया, तवज्जो दी मानसिक रोगियों के इलाज के बारे में या साइकियाट्रिस्ट डेवलप करने के बारे में. तो 2020 will change that. हाँ जी, 2020 will change that. 21वीं सदी में थोड़ा शुरू हो गया था, वो और बदल जाएगा. लेकिन आप और हमारे बाकी दर्शक ये जरूर आसानी से अप्रिशिएट करेंगे कि जितने साइकियाट्रिस्ट हैं बहुत कम है, उसको बदल के एडिक्वेट नंबर्स में साइकियाट्रिस्ट बनना कम से कम 20 साल की बात है. ओके. भाई ओवरनाइट तो साइकियाट्रिस्ट नहीं प्रोड्यूस हो जाएंगे. दैट इज ट्रू, राइट? 10-20 साल लगेंगे. मुझे खुद ये ध्यान है क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहा हूं. भारत सरकार ने संज्ञान ले लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूक नोट ऑफ इट इन 2005-06, और 2009-10 से पिछले 10 सालों से कोशिश की जा रही है कि साइकियाट्रिस्ट की रेट और बढ़ सके, ज्यादा लोग क्वालिफाई कर सके, लेकिन टाइम लगता है. तो तब तक सबसे महत्व की बात यह है जो आपने बात कही, हर साइकोलॉजिस्ट शायद क्लिनिकली ओरिएंटेड ना हो, लेकिन एक एमफिल और पीएचडी कोर्स है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का.
तो जैसे हमने पहले कहा, साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, ये सारे हमारे साथी निदान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्व है, जहां से आपने ये बात शुरू की थी, समाज में झिझक है, स्टिग्मा है, जानकारी की कमी है, इलाज तक कैसे पहुंचा जाए, और क्या एक बार इलाज शुरू करके इलाज लंबा चलेगा या बंद कर दें। एक मिनट के लिए जाएं, आप गौर करें, याद करें, सुशांत सिंह जी के केस में भी जितना पब्लिक प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन वो यही है कि वो 3 अलग अलग साइकियाट्रिस्ट के पास गए, 1-2 बार गए, फिर नहीं गए। तो यहां मैं फर्क करना चाहूंगा 2 मुद्दों का। न सिर्फ हम जरूरी मानसिक रोगियों को इलाज तक पहुंचाए, पहला कार्य है, फर्स्ट टास्क। सेकंड इज दैट द ट्रीटमेंट मस्ट कंटिन्यू। वो मोतियाबिंद नहीं है, इट इज नॉट अ कैटरेक्ट ऑपरेशन कि एक बार मोतिया निकाल दिया और चश्मा लगा दिया और या कॉन्टैक्ट लेंस लग गए। पर सर डायबिटीज में भी तो यही होता है, यू हैव टू एक्चुअली। तो डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, सब में जो लंबे अरसे की बीमारियां हैं उसमें इलाज जारी रखना जरूरी है। तो जहां से आपने बात शुरू की थी, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक तो ये कि ये इसका इलाज हो नहीं सकता। तो आपके जरिए मैं सारे दर्शकों तक एक बात पहुंचाना चाहूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, मानसिक रोगों का इलाज सरलता से, सेफ्टी से संभव है। ऑफन इट इज नॉट कॉस्टली। The treatment of mental disorders is not expensive. कैंसर या कार्डियोलॉजी की तरह लाखों का खर्च नहीं है। दवाइयां बहुत सरल है, काउंसलिंग हो सकती है। So one, it is possible, treatment possible. Second, it's not too expensive. Three, it is available in government and private sector both. In our health system, everybody may choose where he or she wants to go. जी. Most important, fourth, व्यक्ति विशेष जिसको जरूरत है या उनके मित्रों में हमें जागरूकता और चेतना फैलानी होगी कि, एक बार फिर कहें, इट इज ओके टू गेट हेल्प। और वहां बार बार आप और हम दोनों कह रहे हैं, 2020 में जो चेतना बढ़ गई मानसिक तकलीफों के बारे में, दैट शुड हेल्प अस। ये आपके और हमारे लिए मौका है कि हम समाज की मदद कर सकें उस फिनोमिनन को और बढ़ाने में। एक छोटी सी बात है आशा जी, वो मेंशन कर दें, विस्तार में बात शायद आज ना हो पाए, लेकिन जहां डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों का सवाल है, वहां तो आप या हम मान लीजिए एक दूसरे को समझा के 3 बार बातचीत करके इलाज तक एक दूसरे को दोस्ती के रूप में ले जा सकते हैं जी। लेकिन जहां स्किज़ोफ्रेनिया या पैरानॉइड डिसऑर्डर या मेनिया जैसी गंभीर बीमारियां हैं, वहां व्यक्ति सूद में नहीं है और वो न सिर्फ रेजिस्ट करता है, वो आपके साथ झगड़ा करने लगता है कि मुझे क्यों पागल करार कर रहे हो, मुझे क्यों इलाज के लिए ले जा रहे हो। यहां बात आ जाती है जो हमने शुरू में कहा, मानव अधिकारों की। 21वीं सदी में जो पिछले 30-40 साल से परमिटेड था, वो परमिटेड नहीं है कि आप या हम या पुलिस उसको अपनी मर्जी से बांध के अस्पताल ले जाएं। ये थोड़ा सा अगेन बहुत न्यूएंस, नाजुक मुद्दा है। हमें विश्वास हो कि हमारे इस साथी को, हमारे इस परिवार के सदस्य को, हमारे मित्र को इलाज की जरूरत है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो उसके लिए पुलिस और कोर्ट की मदद लेके कानूनी रूप से, नैतिक रूप से मुनासिब तरीके से उसको इलाज तक पहुंचाया जाएगा। सो इट इज नॉट ऑलवेज इजी फॉर द फैमिली। There needs to be cooperation between hospitals, police, and the courts and the NGOs if there are in that area, कि हर उस व्यक्ति को हम इलाज तक पहुंचा सके जो एक्टिवली रेजिस्ट कर रहा है। But sir, that is and correct me अगर मैं गलत बोल रही हूँ, वो ज्यादा उस केस में नहीं होगा जहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज या फिजिकल वायलेंस टू सेल्फ और अदर्स या कंप्लीटली नॉन फंक्शनल जो इंसान है। एब्सोल्यूट, वो उन्हीं केसेस में, वो जो हम 10 केस की बात कर रहे हैं, 100 में से 10 केस, उसमें से 1 या 2 केस ऐसे होंगे जिसमें इसकी जरूरत पड़े कानूनी मदद की। बाकी 7, 8, 9 केस ऐसे हैं जिनको समझा बुझा के प्रोत्साहित करके हम इलाज तक पहुंचा सकते हैं। सर, हम हर हफ्ते आपसे ना 2021 में मैं बहुत पब्लिकली प्रोक्लेम कर रही हूँ, आप हर हफ्ते हमारे लिए कुछ समय निकालेंगे और हम ये बातचीत करेंगे, बिकॉज वी हैव टू से इट्स ओके टू गेट हेल्प। यस,
उसको ऐसे कहें आशा जी, रीच आउट अपने लिए, अगर मुझे जरूरत है तो मैं झिझक न करूं, आई शुड रीच आउट फॉर हेल्प। मोर इंपॉर्टेंटली समाज का हर नागरिक, हर व्यक्ति रीच आउट करे उसके लिए जिसको जरूरत है। एंड अगर आप में से कोई व्यूअर ये देख रहे हैं शो, एंड इफ यू वांट टू रीच आउट, प्लीज रीच आउट टू अस। आप इस पेज पे अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, या आप famhealth.in पे /community पे रजिस्टर कर लीजिए फ्री। उस पे इट्स अ क्लोज ग्रुप, उस पे लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू somehow get in touch with डॉक्टर देसाई, सर आपसे मैं आपको लॉर्ड देसाई बोलने वाली हूँ, लॉर्ड देसाई, ईमेल इज ओके। हाँ राइट। तो आप प्लीज हमें famhealth.in पे ईमेल भी भेज सकते हैं। आप प्लीज reach out to us, right? We'd be only too happy to see how we can support this initiative better. So तो अभी जो mental health का and you know हमारी कितनी बातचीत करनी है, I know I still have about 15-16 minutes. Okay, and I know today's first, तो आप भी अपने के साथ, yeah. So अब जब mental health in India की बात करते हैं, so would I be right in thinking कि depression और anxiety पहले से big issues थी, and अब कोरोना के बाद I know हमें तो बहुत लोग लिखते हैं इसी के बारे में। स्पॉट ऑन, परफेक्टली करेक्ट। एक बार फिर संदर्भ ला दें। 1990 में 1990 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और वर्ल्ड बैंक ने एक मुहिम उठाई जो करीब 10 साल तक उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, अभी भी चल रहा है। वर्ल्ड बैंक एंड WHO केम अप विद अ प्रोजेक्ट अबाउट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। जी, कौन सी बीमारी मानव जाति के लिए कितना बोझ पैदा करती है। सो इट वाज मोर इन इकोनॉमिक टर्म्स, यू सी, दैट्स हाउ द वर्ल्ड बैंक गॉट इन्वॉल्व्ड। तब प्रेडिक्ट किया गया था उस डेटा पे 1990 में और 2000 तक और स्ट्रांगली कि 2020 में डिप्रेशन विल बिकम द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम across the world and as compared to all other medical specialties. My God. मैं यहाँ वाडेबाजी कतई नहीं करना चाहूंगा। इट इज नॉट अबाउट कंपार्टमेंट विद इन मेडिकल स्पेशलिटीज, बट एक मिनट गौर करें, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एम्स हो जहां मैं काम कर चुका हूं, कोई मेडिकल कॉलेज हो, कैंसर, कार्डियोलॉजी, ये सब तो फ्रंट डिसिप्लिन्स हैं, दे आर मोर सिडक्टिव डिसिप्लिन्स। हम जाके मदद भी लेंगे और उनको सपोर्ट भी मिलेगी। साइकेट्री पिछवाड़े में होता है और होता था। तो साइकेट्री वाज ऑलवेज अ नेग्लेक्टेड डिसिप्लिन व्हिच वाज अनफेयर नॉट ओनली टू साइकेट्रिस्ट, इट वाज अनफेयर टू द पब्लिक। तो ये जो वर्ल्ड बैंक WHO का डेटा आया कि भाई हृदय की बीमारी, कैंसर, बाकी सब बीमारियों से ज्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी डिप्रेशन 2020 में। अब ये महज इत्तेफाक की बात मानी जाए या कोई प्राकृतिक संकेत है कि जो प्रेडिक्शन था 20 साल पहले 2020 का डिप्रेशन के बारे में, that became true through corona epidemic. It is, you understand what I'm saying now? It's a very moving realization. How did this happen? हम लोग तो 20 साल से कह रहे थे नगाड़े बजा के कि 2020 में डिप्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1 हो जाएगी। देखा और वो सच निकला ना। ऐसा हो गया। तो अब जो हो गया उसको तो हम नहीं बदल सकते। जैसे आप बार बार कह रही हैं, अब आप और हम मिलके और सारा समाज मिलके यही कर सकता है, और हमें यही करना चाहिए कि मानसिक रोगों को, खासकर डिप्रेशन की बीमारी को समझें, डिप्रेशन के से ग्रसित व्यक्तियों की मदद करें और उनको इलाज तक पहुंचाएं। जी सर, डिप्रेशन इज डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नंबर 1। एक और संक्षेप में बात कह दें, माफी चाहता हूं सर में। हमारे दर्शक इसको इजीली अप्रिशिएट करेंगे। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्रोंकियल अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जितनी भी लंबे अरसे की बीमारियां हैं, एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, को एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो डायबिटीज के साथ, अस्थमा के साथ, हार्ट अटैक के साथ, कार्डियक प्रॉब्लम के साथ डिप्रेशन या एंजाइटी साथ साथ चल रही है। अच्छा, इसमें सबसे महत्व की बात यह है आशा जी कि अगर डायबिटीज या अस्थमा या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी के साथ डिप्रेशन है,
तो अगर हम डिप्रेशन को आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया. ओके, आई ट्राई. अगर डिप्रेशन है शारीरिक बीमारी के साथ, थोड़ा वेट करते हैं. कोई बात नहीं, दैट्स ओके. थोड़ा आपका सिग्नल वीक है सर, सो यू हैव पॉज्ड अ लिटिल. राइट, श्योर. बट वील कम बैक. यस. Yeah. Okay. Okay. Good. Sorry about the disturbance. My miss. हमारी एंड पे हम बात ये कर रहे थे कि शारीरिक बीमारी लंबे अरसे की और डिप्रेशन और बाकी मानसिक बीमारियां एक साथ होती हैं. जी. तो एक महत्व का मुद्दा ये है कि अगर ब्रोंकियल अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज या डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन के साथ डिप्रेशन है, तो एक तो ये है कि डिप्रेशन को पहचान के उसका इलाज करें तो व्यक्ति की और परिवार की सफरिंग कम हो जाएगी. और ज्यादा मुद्दा महत्व का यह है कि अगर हम डिप्रेशन का इलाज करेंगे तो जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या दूसरी बीमारी है उसका आउटकम बेटर होगा. तो अगर शारीरिक बीमारी के साथ डिप्रेशन है और डिप्रेशन को अगर हम नहीं ट्रीट करते हैं तो शारीरिक बीमारी का असर और खराब होगा. तो इसीलिए मेंटल हेल्थ को मेडिसिन से और पब्लिक हेल्थ से जोड़ना बहुत जरूरी है. अगेन हमारे जो मरीज हैं, क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो समझें, हम डॉक्टर लोग समझें और हम पब्लिक हेल्थ में स्पिरिट ला सकें. एक हमारा बड़ा फेवरेट स्लोगन है, मेंटल हेल्थ is a part of health and there is no health without mental health. है ना. तो मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा लाइटली गए. हम सबको याद होगा स्कूल में वो ऐसे लिखवाया जाता था हमसे निबंध, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. राइट. तब हम परेशान होते थे ऐसे निबंध लिखने में, लेकिन उसके पीछे बहुत गहन बात है जो हम साइंटिफिकली अब कह रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते. अच्छा सर, तो दिस वी अंडरस्टैंड, अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो हाउ विल द रेस्ट ऑफ योर बॉडी वर्क, राइट? तो दैट इज द सेंटर. तो अब थोड़ा सर, एंड आई नो हमारा टाइम बहुत जल्दी नियर हो रहा है एंड यू हैव गिवन अस एन आवर. सर बहुत जल्दी डिप्रेशन के बारे में थोड़ा शार्प फोकस करते हैं. व्हेन इज इट, एंड आई नो सब कहते हैं कि अगर तुम बहुत उदास हो या घबराहट हो रही है, एंग्शियस हो, राइट, और ये 2 हफ्ते तक चले प्रॉब्लम, तो उसके बाद यू कॉन्टैक्ट अ साइकियाट्रिस्ट, राइट? ट्रू फॉल्स कोई और, मतलब बिकॉज आई बीन उदास फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम सब 2020 में उदास थे, उससे पहले भी थे बट ज्यादा थे. तो सही कह रहे हैं आप. जैसे हमने पहले भी बात की, 2020 के साल में कोई भी व्यक्ति ये कहे कि उसे उदासी या तनाव, एंजाइटी कभी नहीं हुई, तो वो झूठ बोल रहा है. हो ही नहीं सकता जी. हम सब लोग, including psychiatrists and all medical doctors, see, we are also human beings and so the normal reactions are to be seen as normal. जो आपने बात उठाई बहुत सही है. 2020 से पहले भी महत्व रखती थी, अब बहुत मायने रखती है कि हम नॉर्मल डे टू डे सैडनेस एक्सपीरियंस को डिप्रेशन की बीमारी से अलग कैसे करें. हाउ डू दैट? सामाजिक रूप से हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए सिर्फ ये चीजें चाहिए जो आपने बात कही, एक लेवल पे बहुत दुरुस्त है. अगर 2 हफ्ते से ज्यादा सिग्निफिकेंट उदासीनता या सैडनेस या लैक ऑफ इंटरेस्ट जीवन में लगे तो वो एक इंडिकेटर है कि कंसल्टेशन करना चाहिए. उसके साथ साथ 4 और मुद्दे हैं जो हम फ्लैग कर दें. अगर इनमें से कोई भी एक आधा लक्षण हो तो जरूरत बढ़ जाती है जल्दी कंसल्ट करने की. अगर डिप्रेशन की बिना कारण के हो, if I am feeling sad without any reason, okay, everything is going well in my life but I am feeling sad, so sadness disproportionate to or unrealistic for my life circumstances. 2, if there is significant dysfunction or disability in household work or in my occupation. 3, if there is significant sleep or appetite disturbance. 4th and most important, अगर suicidal thoughts या ideas हैं,
अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि जीवन बेमाने है, बेकार है, दुनिया बहुत जालिम है, इससे अच्छा है कि मेरा जीवन खत्म हो जाए या मैं अपने आप को मार दूं, तो वो रेड अलर्ट है. Suicidal thoughts is a red signal. So in addition to the 2 weeks criterion, जो आपने खुद कहा, ये 4 मुद्दे हैं. अगर इनमें से एक आधा भी लगे, feeling sad without or in the absence of adequate reason, which means कि आप उदास, और मैं हिंदी में थोड़ा इसको हाँ, उदासीनता लगे कोई कारण नहीं है, यू नो, बिना कारण या बेहिसाब उदासीनता लगे, मतलब अगर आप रो रहे हैं बैठे बैठे, हाँ, अकेले, क्राइंग स्पेल्स है, ये क्या मुद्दा इंपॉर्टेंट है. उदासीनता के साथ नीरसता, शायद उदासीनता ना महसूस हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, वो भी एक इंडिकेशन है. सो उदासीनता या नीरसता लगे बेहिसाब या बिना वजह, अगर बहुत डिसफंक्शन हो, बहुत ही मुश्किल हो रही है रोजाना जीवन में, अगर नींद या भूख लगने में बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो, या सुसाइडल थॉट्स हो, तो इन 4 में से कुछ दिखे तो अर्जेंसी थोड़ी बढ़ जाती है. अगर सुसाइडल थॉट्स हो तो अर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. हमारे वर्क में सुसाइडल पर्सन is as much of an emergency as any heart attack. जी बिल्कुल. If we don't intervene in time and if we don't intervene well, अगर हम उस व्यक्ति की समय से और मुनासिब रूप से मदद न करें तो हम जीवन खो रहे हैं. सुसाइड के कारण जो मृत्यु होती है, जो डेथ्स होती हैं, that is again the most common cause of preventable death. एक्सीडेंट्स हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट दूसरा कॉज है प्रिवेंटेबल डेथ का, you know, but suicide is the commonest cause for preventable death. इसमें एक और बात आशा जी संक्षेप से कर लें. हम we are trying to have a scientific talk, हम वैज्ञानिक बात कर रहे हैं एक आसान लहजे में, तो जो सामाजिक एटीट्यूड्स है वो भी हम इसमें पिरो लें. चर्चा हो सकती है पार्टी में या ड्राइंग रूम में या वर्क पे, भाई डिप्रेशन तो अच्छी चीज है ना, डिप्रेशन का इलाज क्यों करवाएं, डिप्रेशन की क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, हो सकता है किसी को डिप्रेशन बड़ा पसंद हो, राइट, ये चर्चा भी होती है. बहुत ठोस कारण है कि डिप्रेशन का इलाज करना और करवाना क्यों जरूरी है. सबसे पहली बात, डिप्रेशन को अब एक बीमारी के रूप में पहचाना गया है, जैसे आपने खुद कहा. दूसरी, डिप्रेशन का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है सुसाइड. सो सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए डिप्रेशन का इलाज संभव है. तीसरे जो हमने बात की, हमारा शारीरिक संभव और इम्पेरेटिव, मतलब जरूरी है. हाँ जी, बिल्कुल जी. सॉरी आई करेक्टेड यू सर, बट नहीं, बिल्कुल जी, न सिर्फ संभव है, जरूरी है. शारीरिक बीमारी और शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करेगा. तो मेरी डायबिटीज डिप्रेशन के कारण नेगेटिव हो जाएगी. और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, संक्षेप में फिर कभी और आगे गए, 20-30 साल से बहुत अच्छी रिसर्च है आशा जी कि डिप्रेशन के दौरान हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. सो जो HIV में होता था इन्फेक्शन में, जो यहां हो रहा है वायरस में, इस वायरस में, वही वहां होता है. अगर डिप्रेशन के कारण मेरी इम्यून सिस्टम कम हो गई और मैं कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आया तो मुझे इन्फेक्शन लग जाएगी. या कोई भी आजकल इन्फेक्शंस तो घूम ही रही, कोरोना वायरस तो काफी गंभीर है, बट तो बहुत ठोस कारण है कि डिप्रेशन को कतई निग्लेक्ट ना किया जाए. जी, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. सर जाते जाते हैं नेक्स्ट सेशन में, I don't know whether you agree or not, but I want to talk about all the aspects of mental health. कौन सी डिजीज होती है और उसका क्या है, लक्षण क्या है, साइंस क्या है. सर डिप्रेशन में मैं साइकोलॉजिस्ट के पहले पास जाऊं कि साइकाइट्रिस्ट के? जहां आसानी से जा सके और जो आपको कंफर्टेबल लगे. ओके. कोई रूल बुक नहीं है जी. मोस्टली साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग से मदद कर सकते हैं तो कर देंगे. अगर उनको लगेगा कि दवाइयों की इलाज की जरूरत है तो आपको साइकियाट्रिस्ट को रिफर कर देंगे. जी. तो फिर कहूंगा जहां आसानी से पहुंच सके और जो आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है सर, सॉरी आई एम रशिंग इट बिकॉज अब 2 मिनट बचे हैं, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं. हम सर आजकल पिछले साल एक और फेयरली न्यू कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है. डिप्रेशन तो चलो सब बात कर रहे हैं. पिछले साल मैंने OCD का नाम काफी सुना, स्पेशली बच्चों को, कि वो बार बार ना अपना, एंड आई एम श्योर दे वर एंग्शियस एंड वी वर ऑल एंग्शियस,
तो बार बार अपना हाथ धोना, डर के जीना, तो उसकी वजह से ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। आई डोंट नो उसको हिंदी में हाँ क्या जी कहते बिल्कुल। हैं, हिंदी हाँ, में क्या उसका कहते हैं? हिंदी रूपांतर मुश्किल है, अगले हफ्ते तक ढूंढ लेना पड़ेगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिकॉज लोगों को एटलीस्ट लक्षण तो समझ आए। हाँ, तो ओसीडी का मैंने बहुत जिक्र सुना, काफी लोगों, यू नो, पीपल हु सफाई पसंद इंसान या टाइम परस्त इंसान, जो भी बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाई मॉरल वाला इंसान है, वो ऑब्सेशन पर्सनालिटी हुई। ऑब्सेशन पर्सनालिटी इज वेरी यूजफुल फॉर सक्सेस एज वी नो, बट ऑब्सेशन बीमारी तब हुई जब मेरे मन में कोई विचार बार बार आता जा रहा है, मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे विचार इतनी बार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैं दिन में 50, 100, 500 या 1000 बार हाथ धो लेता हूं। इस हद तक की चमड़ी खराब हो जाती है। या मैं रूम लॉक करके निकला, मुझे शक हो रहा है कि ताला बंद नहीं हुआ है, मैं 50 या 100, 200 बार जाके ताला फिर चेक करता हूं। ये दो मेजर लक्षण सिम्टम कॉम्प्लेक्स है ओसीडी के। अब मैं सफाई परत से बात शुरू इसलिए की सर मैं कि तो बार बार देखती हूँ कि गैस बंद है कि नहीं। नहीं, 2-4 बार देखें तो ठीक है, नहीं नहीं, नॉर्मल। मैं मतलब बार बार देखूंगी इफ आई एम अलोन। हाँ, बट 2 या 4, 5 बार ना आशा जी, पता 50-100 बार नहीं, नहीं, होपफुली। आई ट्राई नॉट बी अलोन। हाँ। गुड, गुड, दैट नाइस, दैट्स अनदर गुड थिंग। उस पे आते हैं, अकेलेपन पे आते हैं। तो ओसीडी एक अपने आप में बीमारी है जिसका अगेन इलाज साइंटिफिकली इजीली पॉसिबल है। होगा ये कि जैसे हम कोरोना के दौरान अब सफाई के महत्व को समझने लगे, संभव है कि हम में से कुछ व्यक्ति ओसीडी के शिकार हो जाएं। सारा समाज सफाई की महत्व समझने लगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 6 साल से बात कर रहे हैं, है ना, स्वस्थ स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। हाँ, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो वो बहुत अच्छी बात है। अब इस कोरोना की महामारी ने हमें वो शायद 2 कदम और सिखा दिया। लेकिन बाकी सब चीजों की तरह जो नॉर्मल बिहेवियर है वो अगर एक्सेसिव हो जाए तो वो बीमारी माना जाएगा। तो बीमारी मतलब नीड्स ट्रीटमेंट। नीड्स ट्रीटमेंट, पक्का। और एंड वो जैसे आपने होता सही है। कहा, जैसे हमने बहुत सही करेक्ट किया, न सिर्फ ये हम कहें, आज मुझे जो सीखने को मिला है कि हम लोग ये कहते हैं कि इलाज संभव है। अब आज के बाद मैं कहूंगा इलाज संभव है और जरूरी है। अरे वाह, आई एम ग्लैड सर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वही आप बोल yes, रहे हैं। तो सर ओसीडी रिवर्सिबल है क्या, ये मेंटल इलनेस? ट्रीटेबल है। ओके, तो ऐसा मैनेज करते करना हैं, पड़ेगा। मैं भी अगला एपिसोड हम शुरू करते हैं इससे कि ट्रीटेबल से हमारा क्या मतलब है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मैनेज लंबी बात हो करना है। जाएगी। क्या है ना, जब हम ये कहते हैं कि मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, सो वी इलाबरेट ऑन दैट। या सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोलना है कि यू नो एक आजकल फैशनेबल है बोलना आई एम वेरी डिप्रेस्ड। यस, Okay, so we have to make a break. Okay, this is an illness and this is just a feeling of low. टोटली टोटली, Yeah, and बिल्कुल। अगर आप कोई recommend कर सकते हैं people who want to talk about what they went through, that will be amazing. उससे अच्छा जी, हम ये भी कर सकते हैं, फैम हेल्थ के जरिए जैसे मुनासिब हो, संभव हो, एटलीस्ट ईमेल, लाइक वी सेड, चैट ग्रुप्स, जी सपोर्ट ग्रुप्स। जी सो टेक्नोलॉजी जैसे एक चीज और हम जो सब सीख गए हैं 2020 में, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जी है बिल्कुल। ना। या तो टेक्नोलॉजी को हम मुनासिब यूज करें, फैम हेल्थ के आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो जो जैसे भी संभव हो। आई एम नहीं ऑलवेज, तो आपसे बात ही नहीं कर पाते ना सर, अगर नहीं होता टेक्नोलॉजी वी कुडंट हैव आई नो, मीट्स करेक्ट, पॉसिबल। ठीक है सर, आई नो नाउ वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। यस मैम, व्यूअर्स आपसे यू नो रिक्वेस्ट है कि अगर आप और जानना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी फैसेट और एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे या famhealth.in/community पे आप प्लीज अपने कमेंट्स छोड़िए। आई कैन ओनली प्रॉमिस यू सर, मैं आपको अब थोड़ा बैजर करने वाली हूँ, क्योंकि नहीं मैंने नहीं, बहुत सुन लिया है, बहुत बिल्कुल। सुन लिया है मेंटल हेल्थ। लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। अब कुछ ठोस, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करना जरूरी था और अब और जरूरी हो गया है, लेकिन सिर्फ बातचीत से काम नहीं बनेगा, अब एक्शन जरूरी है। Yeah. So let's टोटली, get, if it means getting people to talk about it, अगर आप व्यूअर में से कोई उठ के you know बात करना चाहता है about your experience, come share. टोटली, Because there's so many people who are suffering, and I'm glad some other broadcast channels are also talking about mental health. But let's act. इस पे टोटली। कुछ करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर टाइम।
आई नो आप बहुत बहुत बिजी हैं, बट इतनी सारी बातचीत अनरिजॉल्व्ड है अभी सर. इट्स अ प्रिविलेज. थैंक यू. ऑलराइट सर, थैंक यू. एंड थैंक यू. 1st of January सर, एक पॉजिटिव नोट पे एंड करूंगी मैं. 2021 इज सब प्रॉब्लम हल हो गई ना. जैसे 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 उस पिक्चर में शाहरुख खान ने कहा था, और आज सुबह ही हम बात कर रहे थे हमारे साथियों से, जब उसने ये कहा फेमस डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकेंड हाफ वाज मोर पॉजिटिव. सो मैं वही इस्तेमाल करना चाह रहा हूं. 2020 शायद बहुत मुश्किल रहा. 2021 में सावधानी जरूरी है, लेकिन यकीनन विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं मानव जाति के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हम सब के लिए 2021 2020 के मुकाबले बनिस्बत बेहतर होगा. Excellent. Thank you so much and wish everybody a happy new year. Sir, Happy आप New ये बोल दो Year. ना. Thank you so much, sir. Thank you. What a delight, sir. All right. So I'm now going to Yes, stop. ma'am. Yes, Yes. sir. Thank you.